خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سلامتی کلام پاک یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 3 باب اور پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کی جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ مقدس نام کا یہاں پر پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اور ہم ان 7 کلیسیاؤں میں سے آج سردیس کی کلیسیا کے بارے میں کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ سردیس کے معنی ہیں بقیہ، یعنی باقی سب ختم ہو جائیں اور تھوڑا سا رہ جائے، یعنی تھوڑا سا بقیہ، اس کا مطلب میننگ کہ بقیہ۔ میرے عزیز، سردیس کا شہر جو ہے وہ سمرنا کے مشرق کی طرف 50 میل دور اور تھواتیرا کے جنوب میں 27 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سردیس کی کلیسیا ایک دولت مند کلیسیا ہے۔ یہاں پر بڑی صنعت جو ہے وہ کپڑا بنانے کی ہے۔ یہاں پر مہین کیتانی کپڑا بنتا، اور پھر یہاں پر زیورات بنائے جاتے، سونار کا کام ہوتا، اور تیسری بڑی صنعت یہاں پر رنگ سازی کی تھی۔ کرمزی رنگ اور دوسرے اور کلر رنگ یہ تیار کیے جاتے اور دوسروں کو یہ بھیجے جاتے۔ اب تینوں کام بڑے اہم تھے، زیورات بنانا اور پھر رنگ سازی کا کام کرنا۔ اس لیے یہ لوگ جو تھے، یہ شہر جو تھا سردیس کا، یہ شہر ایک امیر شہر کہلاتا ہے، کاروباری اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کاروبار وسیع ہے اور ان کا کاروبار ایک منافع بخش ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زیورات بنتے ہیں، اس کا مطلب سونے کا کام ہوتا ہے، کپڑا بنتا ہے، اور پھر یہاں پر رنگ کا کام یہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز، یہاں کے لوگ بت پرست لوگ ہیں۔ یہاں پر مذہبی فرقے اور بہت سی اور سوسائٹیز بھی ہیں۔ یہاں پر ماتا دیوی کا مندر ہے، اور ان لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ یہ ایک محفوظ شہر ہے، یہ ایک بہت ہی محفوظ شہر ہے۔ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں، اور اس کے دامن میں نیچے یہ ایک شہر جو ہے یہ بسا ہوا ہے۔ میرے عزیز، یہ چاروں طرف سے مضبوط پکی چٹانیں ہیں، اور یہاں پر حملہ آور جب ہوتے اور ان کو تھوڑا دفاع ملتا۔ میرے عزیز، یہ شہر جو ہے ہرمس کے بالکل اس سے بلندی پر ہے۔
हर्मस निचली सतह पर है और ये शहर जो है सरदीस, यहाँ पर मसीही कलीसिया कायम है, ये बहुत बुलंदी पर है। मेरे अजीज, ये लुदिया का दारुल खिलाफा है, दारुल सल्तनत है। लुदिया एक बहुत बड़ा शहर, और ये लुदिया जो है कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि सरदीस का जो शहर है ये लुदिया का दारुल खिलाफा है। मेरे अजीजों, 333 में सिकंदर आज़म ने इसे फतह किया और इसके बाद एंटीओकस आज़म ने 214 में इसे फतह किया और यहाँ पर 17 ईस्वी में बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले आए और शहर तबाह होता रहा। और फिर लिखा है कि यहाँ पर इसको फिर से तैयार कर लिया जाता है। हर्मस शहर को तरक्की करता रहा क्योंकि वहाँ पर ज़लज़ले आते, और लेकिन हर्मस शहर जो था वो एक मैदानी था और नीचे था, और वहाँ पर ये शहर जो है इससे आगे बढ़ता चला गया। हम ये देखते हैं कि 1400 में सरदीस का लीन मुकम्मल उसने तबाह कर दिया। लीन ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और 1850 को जब हम इसे देखते हैं, इस शहर में एक भी आदमी रहायश न था, लेकिन वहाँ पर खंडरात आज भी मिलते हैं और इन खंडरात ही से ये पता चलता है कि यहाँ पर ये कलीसिया कायम थी। मेरे अजीज, यहाँ पर एक छोटा सा सारत का एक जो है वो एक गांव यहाँ पर मौजूद है। सारत गांव आज भी वहाँ पर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और ये गांव आज भी आबाद है। सरदीस की ये जो कलीसिया है मानी खेस कलीसिया है। देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में कि सरदीस की जो कलीसिया है ये मुर्दा कलीसिया कहलाती है। कलाम मुक़द्दस में इसके बारे में जो पहली आयत है इसी में लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तो जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। मेरे अज़ीज़ों, हम ये देखते हैं कि ये कलीसिया जो है ये एक मुर्दा कलीसिया है, क्योंकि इसके काम मुर्दा हैं, इसके काम जो हैं वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं, और इसीलिए 14वीं सदी तक ये कायम रही और इसके बाद ये सफ़े हस्ती से मिट गई। खंडरात में एक बड़ा मंदिर और उस मंदिर के बगल के अंदर एक छोटा चर्च, उसकी दीवारें और उसके असरात और उसके हमने वहाँ पर नवादरात ये वहाँ पर लिखा है कि ये पाए गए, और उसके खंडरात आज भी गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर मसीही कलीसिया जो थी ये कायम थी। मेरे अज़ीज़, लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास 7 रूहें हैं, हम रूहों के मुतालिक पहले सीख चुके हैं। मेरे अज़ीज़, ये 7 रूहें जो हैं ये रूहुल कुद्दुस को ज़ाहिर करती हैं, और हमने बग़ौर 7 रूहों के मुतालिक इसका कलाम मुक़द्दस में से सीखा। मेरे अज़ीज़, ये 7 रूहें क्या हैं और फिर 7 सितारे क्या हैं, हमने इनके बारे में भी कलाम मुक़द्दस में से ये सीखा है। मेरे अज़ीज़, 7 सितारे और 7 कलीसियाएँ, मेरे अज़ीज़, ये पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तुमने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का जो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। ये
कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। हमने ये पहले कलाम मुकद्दस में से ये देखा है कि ये 7 सितारे 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। मेरे अजीज, लिखा है वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आज वो हमारे कामों को भी जानता है, उस वक्त उनके कामों को जानता, आज हमारे कामों को भी हमारा खुदावंद जो है वो जानता है कि हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, या क्या करने वाले हैं और क्या किस काम का इरादा रखते हैं। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने आप को जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि चलती फिरती लाशों के बारे में जब हम ये सब कुछ देखते हैं, चलती फिरती लाशों के बारे में, यानी कि वो जिंदा कहलाते हैं, यानी नामी मसीह भी हैं और उनके अमाल अच्छे नहीं हैं, उनके काम अच्छे नहीं हैं। हम अपने ही इलाके में ये सब देख सकते हैं। हमारे नौजवान नशा करते हैं, हेरोइन पीते हैं, चरस पीते हैं और वो फिर सिगरेट नशी करते हैं और नशे करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पत्नी और क्या करते हैं, गाली गलौज और लड़ाई झगड़े और ये सब काम करते हैं और ये कहलवाने को, ये अपने आप को मसीही कहलवाते हैं। लेकिन मेरे अजीज, ये चलती फिरती लाशें हैं। मेरे अजीज, यहाँ पर भी ऐसी ही बात है कि तू अपने आप को जिंदा कहता है, वो अपने आप को मसीही कहता है, लेकिन तू है मुर्दा, तेरे काम मुर्दा हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू कितना पासा है, कितना अच्छा है, क्या करता है। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में सरदीस की कलीसिया के लिए ये लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं और तू अपने आप को जिंदा कहता है, लेकिन तू है मुर्दा। जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैंने तेरे किसी भी काम को पूरा नहीं पाया। जो काम तूने मनादी का शुरू किया वो काम तूने पूरा नहीं किया। जो काम खुदावंद कहते अपने कलाम में अपने वो रसूल के मुताबिक, यूहन्ना के मुताबिक, यूहन्ना रसूल यहाँ पर फरमाते, खुदावंद से ये मुकाशवा हासिल करते, फरिश्तों से हासिल करते और आज वो रखते और कहते हैं कि जो जो काम तुझे दिए तूने उनको पूरा नहीं किया, मनादी का काम पूरा नहीं किया। तूने, अगर खुदा का खादिम है, उसने कलाम सुनाने में सुस्ती की है। अगर मुबश्शिर है तो उसने बाहर जाकर कलाम सुनाने में सुस्ती की है, और एल्डर है उसने आगे लीडरशिप में और गलतियां बरती हैं। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। लिखा है कलाम मुकद्दस में, जागता रहे और उन चीजों की जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैं तेरे सब कामों को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाता। वो कहता है कि तेरे काम अधूरे हैं, तेरी खिदमत अधूरी है, तुझे उठ खड़ा होना है, तुझे जागना है। जाग आए सोने वाले, तो तुझ पर खुदावंद यीशु मसीह का नूर चमकेगा। तुझे और मुझे उठना है और आगे बढ़ना है और उस काम को पूरा करना है। हमें किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। मेरे अजीज, सरदीस की कलीसिया लगता है कि ये एक अधूरी कलीसिया है, इसके काम पूरे नहीं हैं। मेरे अजीज, सफाई सुथराई करने वाला हर रोज उसके घर की सफाई सुथराई करे, उसकी हैकल की सफाई सुथराई करे,
कलाम सुनाने वाला कलाम सुनाए और इबादत करने वाले उसमें इबादत करें। और जो कुछ कलाम मुक़द्दस में लिखा है अच्छे और नेक काम वो करे। इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है और लोग मर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन ख़ानदानों के लिए जो बड़ी तकलीफ़ और करम में हैं, पहली बात उनके लिए दुआ करें और उनके लिए और कुछ राशन का इंतज़ाम करें। और फिर इसी तरह जो इलाकाई सतह पर जो लोग हैं, जो मसीही हैं या नहीं हैं, इंसान हैं, हमें उनकी भी फिक्र करनी है। हमें उनसे पूछना है क्या खाने के लिए कुछ है। अगर आपके पास है तो आपने उनको देना है, इसलिए कि हमारी बात कुछ ज़रूर होगी। खुदावंद का शुक्र है गवाही के तौर पर बैप्टिस्ट चर्च जो है वो हर रोज़ शाम को कलीसिया की बहनें खाना बनाती, सालन बनाती और वो लोगों में वो खाना तकसीम किया जाता। आज इसको तकरीबन 12वां दिन या 13वां दिन है और ये काम जारी और सारी है। सब मिलकर करते हैं और ये एक अमली काम है। हमें लोगों को खाना खिलाना है और हमें प्यासों को पानी पिलाना है, नंगे को कपड़ा देना है और हमें जो कैद में है उसकी हमें खबरगिरी करनी है और जो बीमार है उसकी तीमारदारी करनी है। हमें इन कामों को पूरा करना है, कलाम को पढ़ना है और कलाम की सच्चाइयों को पढ़कर उस पर अमल पैदा होना है। मेरे देश हमारे अमाल अच्छे और नेक होने चाहिए। हम किसी के दुख दर्द में बराबर के शरीक हों, एक दूसरे का ख्याल रखें तो फिर खुदा तेरा और मेरा ख्याल रखेगा। मेरे अजीज नहीं तो तुझसे और मुझसे बात तो जरूर होगी। हमें तौबा की मनादी के लिए उठना है और खुदावंद यीशु मसीह के लिए रूहों को जीतना है। ये काम है जो ये काम इन्होंने नहीं किए थे। फिर वो कहता और फरमाता है तौबा करो। मुकाशवा 3:3 में वो कहता कि तौबा करो। इस आयत को पढ़ लेते हैं। बस याद कर कि तू ने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रहे और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे अजीज, खुदावंद का कलाम तेरे और मेरे लिए आज है कि मुझे और तुझे जागना है और तौबा करनी है। मेरे अजीज, हमारे सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। तीसरी आयत में ये लिखा है कि याद कर तूने किस तरह की तालीम पाई है। पहली बात हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है इसको याद रखना है कि अगर तेरी एक गाल पर तमंचा मारता है तो दूसरी भी उसकी तरफ तो फेर दे। बर्दाश्त की तालीम पाई है, हमने मोहब्बत की तालीम पाई है, हमने एक दूसरे का ख्याल रखने की तालीम पाई है। मेरे अजीज, हमने जो तालीम पाई है उसको अमल में लाना है, उस पर अमल करना है और हमें उस तालीम पर हमेशा कायम रहना है। मेरे अजीज, और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू तौबा कर। कभी कभी ऐसा होता है हम कलाम को सुनकर सुन हो जाते और तौबा करते ही नहीं और कहते हैं चलो कल तौबा कर लेंगे, चलो कल तौबा कर लेंगे, चलो कल तौबा कर लेंगे। कल तो किसी ने नहीं देखी, हर दिन आज में आता है। मेरी जान, मेरे भाई, तो तौबा कर ले। कल का तुझे कुछ इल्म नहीं है, कल क्या होने वाला है। ये जो सांसें, ये जो जिंदगी जो खुदा ने दी है, ये उसका बहुत बड़ा दिया है, बहुत बड़ा इनाम है और जिंदगी में ही तुझे तौबा करनी है। तौबा कर लेगा तो बहुत अच्छा रह जाएगा और तू हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। मेरे अजीज, यहाँ पर लिखा है कि तू तौबा कर और तू जागता रहे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है नहीं तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। जिस तरह घर के अंदर एकदम पता भी नहीं लगने देता और वो आ जाता और घर का सामान लूट के ले जाता। खुदावंद यीशु से भी कहते हैं कि मैं आसमान से एक चोर की माने जाने वाला हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है और मैं जल्द
कि जिस तरह चोर आ जाता है किसी को नहीं पता, इसी तरह मैं भी आ जाऊंगा और मैं तुझ पर आ पड़ूंगा और मैं तुझे, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुझे फिर नुकसान हो जाएगा। मेरे अज़ीज़, तेरा और मेरा मसीहा आने वाला है, लेकिन मुझे उस पर ईमान लाना है, तुझे भी ईमान लाना है। तुझे अपने गुनाहों से तौबा करके ईमान लाने की ज़रूरत है कि खुदा यीशु मसीह खुदा ताला के बेटे हैं और उसके नाम में हमें बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में बपतिस्मा लेना है। मेरे अज़ीज़, कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि मैं तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे अज़ीज़, कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखी है कि हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है, तौबा करके हमें उठ खड़े होना है और फिर हमें उसके काम करने की ज़रूरत है। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, मुकाशवा गौर तलब आयत है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। मेरे अज़ीज़, सरदीस की कलीसिया के लिए एक खुशखबरी जरूर है। खुदावंद के कलाम में लिखा है चौथी आयत में, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, जिनकी पोशाक अभी पाक है, जिन्होंने ज़नाकारी नहीं की, जिनकी पोशाक अभी वाइट है, जिन्होंने बदी और गुनाह नहीं किया। मेरे अज़ीज़, यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सरदीस में अलबत्ता थोड़े से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, उन्होंने कोई बदी, कोई गुनाह नहीं किया। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। कलाम मुक़द्दस में हम ये देखते हैं मुकाशवा 6:11 में, वहाँ पर इनके बारे में लिखा है कलाम मुक़द्दस में 6:11 में, और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा न हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में 6:11 में ये लिखा है कि आसमान पर एक बड़ी कुर्बानगाह है, सुनहरी कुर्बानगाह है, और वहाँ पर शहीदों की रूहें वहाँ पर मौजूद हैं और वो खुदावंद के हुजूर में चलाती हैं और वो ये कहती हैं कि तू हमारा कब तक इंसाफ नहीं करेगा। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि उनको सफेद जामे दिए गए और उनसे कहा गया कि तुम्हारे और भी हम खिदमत भाई जमीन पर मौजूद हैं जो कत्ल होने वाले हैं, जो शहीद होने वाले हैं। जब तक उनका शुमार पूरा ना हो आप इंतजार करो। मेरे अजीज, शहीदों की रूहें कभी वो हमेशा जिंदा रहती हैं मेरे अजीज, और वो डायरेक्टली खुदा के तख्त के पास पहुंचा दी जाती हैं और वो हमेशा खुदा को और उस बर्रे को वो देखती रहती हैं। मेरे अजीज, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कलाम मुक़द्दस में सरदीस की कलीसिया के लिए ये लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। हालेलुया, वो इस लायक
कलाम मुकद्दस में लिखा है। और फिर लिखा है जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज न करूँगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूँगा। कैसी खुशहाल बात लिखी है। यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी का पैगाम है। जो गालिब आए उसे इसी तरह पाकीज़गी की पोशाक पहनाई जाएगी और उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटा जाएगा, बल्कि बाप और उसके फरिश्तों के सामने मैं उसका इकरार करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हमारा इकरार करेगा जब हम जमीन पर उसका इकरार करते हैं। अगर हम जमीन पर उसका इनकार करते हैं तो वो भी अपने बाप के सामने हमारा इनकार कर देगा। मेरे अज़ीज़ों, हमारे नाम वो किताब हयात में लिखता है और कहता है कि वहां से हरगिज़ ये मिटाए नहीं जाएंगे। जो गालिब आए उसके लिए इनाम है। पहला इनाम पोशाक का है, पाकीज़गी की पोशाक का है, सफेद वाइट पोशाक का है, वाइट कपड़ों का है, और फिर उसका नाम किताबे हयात में लिखा जाएगा और मिटने का नहीं है। वो कहता कि मैं तेरा इकरार करूंगा। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में हमें पीछे नहीं हटना है। हमारा नाम किताब हयात में लिखा जा चुका है और अब कटने का नहीं। मेरे अजीज, तुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर इस खिदमत को तूने जारी और सारी रखना है। मेरे अजीज, जो तू कर रहा है इसे थामे रह और तू करता रह। जो सफाई का काम करता, सफाई सुथराई और जूते सीधे करता, वो करता रहे। और जो राशन बांटता और जो खाना बनाते और खाना बांटते वो करते रहे। सखावत का काम होता रहे और इसी तरह करते जाइए। और जो कलाम सुनाता वो कलाम सुनाता रहे। इबादत करने वाले इबादत करते रहें। हम तो सुना करने वाले हम तो सुना करते रहें। मेरे अजीज, लिखा है जो गालिब आए तो मैं उसको सफेद पोशाक दूंगा, उसे पहनाई जाएगी और उसका नाम किताब हयात में लिखा जाएगा। इकरार करूंगा, फरिश्तों के सामने इकरार करूंगा। मेरे अजीज, तेरा और मेरा नाम किताब हयात में लिखा गया है। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से मुकाशवा 20 बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुताबिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में जब हम मुकाशवा 20 बाब और उसकी 11वीं आयत से 15वीं आयत तक मुताला करते हैं तो यहाँ पर किताबों का जिक्र है। लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक उनका
इंसाफ किया गया, उन मुर्दों का इंसाफ किया गया। जो किताबें खोली गई जो अमाल की किताबें थी, और मुर्दों का इंसाफ जो है, जो कुछ उन किताबों में लिखा था उसके मुताबिक उन मुर्दों का इंसाफ किया गया। मेरे अजीजों, यहाँ पर किताबें और किताबे हयात का जो जिक्र है कलाम मुक़द्दस में से, और आगे चलकर ये लिखा है, और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। जो डूबकर मरे हैं उन्होंने, समंदर के अंदर जो मरे हैं उन्होंने अपने मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया है। मौत और आलम अरवाह जहाँ पर रूहों की रहने की जगह है, उन्होंने भी, आलम अरवाह ने भी वो तमाम मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उनका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा है सरदीस की कलीसिया के लिए, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ न काटूंगा। वो फरमाता और लिखता और वो कहता है, पहली बात, पहला इनाम सफेद पोशाक दूंगा, उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ न काटूंगा, और मैं अपने बाप के सामने और फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा। मेरे अजीज, कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है कि खुदा हमें इनाम देने वाला है, खुदा हम पर रहम करता है, करम करता है, और ये सातों कलीसियाएं जो आसिया की हैं, इनको उनके अमाल और उनके कामों के मुताबिक उनको ये लिखा जाता, ताकि वो आगे बढ़ें और तरक्की करें, और अपने गुनाहों से तौबा करके हम अपने मसीहा के साथ वो अपनी पहली सी मोहब्बत को वो कायम कर लें। और यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है कि जब तू तौबा न करेगा सरदीस की कलीसिया के लिए, कि मैं तुझ पर न पढ़ूंगा। मेरे अजीजों, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है और अपना मन, अपना दिल अपने मसीहा को दे देना है। मेरे अजीज, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज हमें भी वो फरमाता है, वो हमारे कामों को जानता है और वो हमारे अमाल को जानता है, जो हम कर रहे हैं वो सब जानता है। वो तेरी और मेरी खिदमत को जानता है, वो तेरे अमाल और मेरे अमाल को जानता है। रहीम कुदूस खुदावंद जो है, जो पाक और पवित्र खुदा जो है, उसने तेरा और मेरा नाम किताब हयात में लिखा हुआ है। हमें जागना है, उठना है और उठकर आगे बढ़ना है मेरे अजीज, और हमें उसका इकरार करना है, हमें उसका इकरार करना है। खुदावंद आसमान पर अपने बाप और फरिश्तों के सामने तेरा और मेरा इकरार करेगा। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत बख्शे।